to Synergisphere session. A warm welcome to everyone who is here again to share their thoughts and to learn from their classmates, right? So, this session, like recently, we had two different sessions. So, where one of the sessions was related to the debate, and another one was recognizing your efforts, right? This session, we are back with your classmate, a learner from MIT SD PGDM, who is going to share his knowledge and wisdom with you all. And this session is going to be full of learning, right? So, Synergisphere is a space where we bring together learners, professionals, and industry experienced people to learn from each other, right? And gain practical insights beyond the classroom. So, today's session is particularly interesting because it focuses on something that quietly plays crucial role a crucial role in global trade, transportation, and safety. That is dangerous goods, right? So every day, thousands of shipments travel across the world through sea, air, and land. Some of them, these shipments contains materials that can pose serious risk if not handled carefully. And understanding how much these goods are managed safely is important part of the logistic ecosystem as well, right? And it is important for us as well as a layman because even I don't know what dangerous goods are, to be very particular, right? So it is important for us to know why, because in our day to day life, if we get exposed to something like that, we will have an understanding of how to deal with it right away, right? So even if we have a small understanding, it can play a huge role in that moment. So, and today we are going to learn this from someone who works very closely with this field and will help us understand better of how to deal with dangerous goods, right? Yes. So, on that note, we are welcoming here to join with us Mr. Rachit Mittal, who is a PGDM learner at MIT SD, a dangerous good instructor and logistic professional with over 7+ years of experience in the field of air cargo operations, dangerous goods handling, and export logistics. So, Rachit has worked extensively with international logistic processes, ensuring that shipments containing hazardous material comply with global safety regulations such as IATA and dangerous good regulations. Right, Rachit? Yes. Very correct, absolutely correct. Thank you, Charulata, for your wonderful introduction. I'm really glad to be a part of Synergy Sphere and to give these instructions to my dear classmates and to everyone around. It's been a pleasure to be here. Thank you. Amazing. Thank you so much, Rachit. So, through today's session, he will help us understand what dangerous goods actually are, why they require strict regulations and special handling, and how industries manage safety while transporting such materials across the world, and what career opportunities exists in this fascinating domain, right? And on that note, we will be wanting to know more about Rachit. So, quickly, Rachit, can you introduce yourself? Tell us about your educational background, family background, your career roadmap. Understood, understood. So let's go ahead with that. So just like any other student, when I started my education, I was pretty much confused that कौन सा फील्ड लूँ, कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं एज अ स्टूडेंट जब आप ट्वेल्थ पास करते हो, कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है. सो मैं I just started with my commerce background. I like just let's just start where you are like, and then suddenly something came up in my mind that I have to go be close to the airline industry for because I like to travel and everything. But reality started hitting and I got my practicality in my mind. I started doing I searched about this ITA course and I got closer to a cargo industry where I understood that cargo is a very good sector and a growing sector, a sector that never ends. It just keeps moving. Anything, whether it is COVID, whether it is any crisis, logistic industry is something that never ends.
So I got my hands on cargo industry where I started my cargo introductory course from ITA itself. So basically, if I tell students that what is ITA, ITA is a Canada based institute. ये पूरे airline sector को rule करता है. So मैंने ये course इसलिए particularly चुना, and when I put my hands in cargo, I got to know there is something known as dangerous goods. That kept me more interesting, and I started knowing about it. I started doing a course about it. Slowly, I took a step forward. I took my first job in Air India as an intern. I got into cargo service center at the airport itself. So I worked around for airport like around one year as an intern itself. I got my hands later on for more deeper study into dangerous goods of ITA itself, and I already have a certificate of a professional training instructor from ITA. So all this is my education background. And speaking about work, as you well said, it is 7+ years of experience. I've been working with airline. I've worked at the airport as well in the ground handling. So I was very closely related to the dangerous goods and the cargo, the loading, and every sectors. And currently, where I'm working, it's a chemical manufacturing company, and we are leading exporter throughout the international market. And if you speak about my family background, my family comes from being a Marwadi. My family comes from a business mindset. So when in a business mindset, you tell that I don't want to work in the father's legacy or something like that. So it's a bit very different thing, you know. That अरे मेरा बच्चा काम नहीं करेगा यहाँ पे, हम लोगों ने यहाँ पे सब सेटअप करके दिया है. So that was my mindset shift. I had to work on my own. My father is into finance, and my mother is a homemaker. And my brother, as said, he has joined my father's business, but I'm working a bit different than the family. Wow, that is So this very is about nice. me, Charulata. Thank you so much for sharing everything about you, Rachit. And that is very fascinating, right? To Pleasure, know someone from a completely pleasure. unique background and then going somewhere, where we have. That's So, right. a lot of people are not even aware about what this domain really is, right? So, this is, I think, a very Correct, unique correct. perspective that we have got today. And to learn about this, I think it is very fascinating for me Absolutely. as well. And with this session, we are going to learn more about it, right? So thank you so much. Definitely. Yeah. I also Pleasure. wanted to know your experience with MIT SD so far. That's it. Correct. It's been since last year I joined MIT SD, and it's been really good part. Like I've learned many different things. Of course, like I've never joined live sessions mostly because I've always watched recordings. And काफी जितने भी यहाँ पे मेरे क्लासमेट्स हैं उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा रहेगा. Why? Because उन लोग भी वर्क कर रहे हैं. 9 to 5 जॉब है, पर 9 to 5 कभी भी 9 to 5 में एंड नहीं होता है. 9 to 6 जाता है, 9 to 7 जाता है, 9 to 8 जाता है. सो ऐसा हो गया है कि जब भी टाइम मिलता है वाइल ट्रैवलिंग, आई बिलीव अभी भी कुछ लोग ट्रैवल कर रहे रहेंगे ऑफिस में ब्रेकफास्ट करते करते बैठ के देख वॉच कर रहे रहेंगे. सो दिस इज हाउ आई वाज, एंड whenever I get time, I'm very enthusiastic to open a book and learn something new. And I've seen the notes of MIT SD. It's very different, and I like the particularity that सारे सब्जेक्ट में डिटेल एनालिसिस है. एंड सबका फॉलो बहुत बढ़िया है. दैट फॉलो अप Right. पार्ट, दैट अगर कोई स्टूडेंट पढ़ भी नहीं रहा है तो शायद वो फॉलो अप के कारण पढ़ लेगा. Right. So, and yes, of course, whenever I have put a complaint on e-library, one thing is wonderful that I guess 1 hour, 2 hours, अगर रात को complaint डालो तो in the morning I get a call. So Amazing. Right. it's a very good experience. It's a very good experience. Okay, amazing. Thank you so much for sharing your experience, Mr. Rachit. So one thing is for sure that you have encouraged a lot of learners today because they also go through the same process just like you said, based on their timeline they study. So it is not always that everybody is studying according to the live lectures only, but it is very nice to see that this community of Synergy Sphere is always full of Absolutely. enthusiasm and they are always joining in the lectures, always being there, supportive towards their classmates, and always eager to learn. Agreed. Agreed. Yes.
And thank Agreed. you so much for you as well to coming in. By the way, let me tell you, Rachit has raised a ticket and he particularly said that I want to be a speaker at Synergisphere, right? So similar That's to right. him, That's right. yes. And I want everyone to feel encouraged like Rachit and take, his um, the way he took it, right? To come in, to share your knowledge and wisdom, and to be a part of Synergisphere, like you always do. So thank you so much on that note. One Yeah, please, Rachit. one thing I would like to add is it is not about you are a specialist or an expert. The part is be open up to speak and connect with people around you, and this is what the biggest learning is. You'll become an expert not by just taking the experience from the office. Your expertise come from everywhere. The part is take action. That is every successful people I've heard, they just believe on one particular thing, that is just take action, take action, take action. आपको Very नहीं करने nice. का मन करे, this is when the part is you have to do it. So this is what I have learned in my whole career. Very nice. Very beautifully put, I think. Those who take actions always lead to somewhere, right? So this is a way of Correct. moving ahead in your journey. So thank you so much, Rachit. Absolutely. One more thing Thank you, that Mr. I Ananta. want to know is, all of our Yes. learners want to know is, so what are the trends, industry trends going on in your sector, and what will you suggest if someone wants to, be a part of your domain, your sector? So firstly, look, I am not like that professional speakers. I like to be connected to my colleagues, my senior managers, and every part. So what I have basically seen is don't go on softwares, man. These software generation is very irritating to everyone, I believe. But yes, it's not that you have to you can't be कि मैं सॉफ्टवेयर नहीं आता है मुझे तो मैं सीखूंगा ही नहीं इंफॉर्मेशन लो नॉलेज लो सीखो सब पर डिपेंडेंट मत रहो उसके ऊपर आज एआई का जमाना चल रहा है सबके लिए और आई हैव सीन बॉसेस बीइंग डिपेंडेंट ऑन एआई फॉर एवरी लिटिल Hmm. पर्टिकुलर थिंग अगर यहाँ पे अगर कोई लोग लॉजिस्टिक्स से है सो आपने भी शायद आपकी कंपनीज में देखा रहेगा दैट पीपल आर पुटिंग द इंक्वायरीज ऑन एआई जस्ट टू गेट अ पर्टिकुलर बजटेड इंक्वायरी का रेट so Right. you'll get the rate. I'm not saying you won't get the rate. आपको मिलेगा रेट पर वो रेट वो नहीं होएगा क्योंकि अभी वॉर का सिचुएशन भी चल रहा है जिससे रेट्स चेंज होते जाएगी अगर आपको आज 50,000 में जा रहा है शिपमेंट कल आपका 80,000 में शिपमेंट जाएगा अनदर पार्ट व्हाट आई हैव सीन इज सिंगापुर इज अडॉप्टिंग रोबोटिक arms robotic in warehouse china has adopted to ai just to move cargo from one place to another no driver no truck nothing so these are the things that we need to adopt instead of that musical roots. So Right. this is what my point is, and this is the trends I have seen. Okay. Great, very well put, I believe. And we, as citizen of this country, and for people who are, learning and growing like everybody else, we will definitely try to learn Absolutely, more. We will definitely try to grow in many we ways will. possible, right? So thank you Absolutely. so much for encouraging, Mr. Rachit. Thank you. Now moving ahead, without taking any further ado, I would request you to please take over and share with us how to handle, dangerous goods with care. So I can start my PPT from here, Yes, or is it definitely you just some can. basic points? Okay, I have got the sharing option. Yes, you have. Okay. Yes. So in the meanwhile, learners, if you found the live caption and language translation feature useful, please react a thumb to the chat that I've posted in the chat box. If not, you can react to this thumb. Okay, I guess that helps. Amazing. Okay. Thank you so much. So yes, Rachit, please, without taking any further ado, kindly take over the session. Thank you. So is everyone able to see my PPT? Please comment yes in the chat box, so I will be updated with your part. Yes, the PPT is visible. Yes. Okay. Okay. Thank you.
So I have prepared a course learning objective, what basic course learning objectives will be for the today's session. So first is to be able to understand the definition of dangerous goods. अगर हम लोग डेफिनेशन ही नहीं जाने कि डेंजरस गुड्स क्या होता है तो हम लोग उस पर आगे कुछ भी वर्क नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज द वेरी फर्स्ट बेसिक दैट आई वुड लाइक स्टूडेंट्स टू नो, दैट व्हाट इज डेंजरस गुड्स, टू बी एबल टू हैव नॉलेज ऑफ द ओरिजिन कि डेंजरस गुड्स कहाँ से आया है, उसका रेगुलेशन क्या है एंड उसको कौन इंडिया में गवर्न कर रहा है. Third is knowledge of the different classes of dangerous goods. So all those in logistic currently उन्हें पता रहेगा शायद कि dangerous goods में कुछ classes होते हैं, और जो logistics से नहीं भी है that is also okay from my point of view, because that is not required कि आप logistics से ही belong करते हो, because dangerous goods एक ऐसा चीज है जो हम लोग अपने daily life में हर जगह deal करते हैं but we are not aware of it. So that today I'll make you aware. Third, to identify dangerous goods through marking, labeling, and also there is a packing thing which I'll say. पैकिंग, मार्किंग, लेबलिंग से आप डेंजरस गुड्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे. जैसे क्लासेस मैंने ऊपर बोला, क्लासेस से भी आपको डिफरेंट लेबल्स पता चलेंगे. टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज द डॉक्यूमेंटेशन यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ डेंजरस गुड्स. सो एक शिपर्स डिक्लेरेशन ऑफ डेंजरस गुड्स करके एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके बारे में जस्ट मैं आपको एक जिस्ट दूंगा. सो टुडे सेशन विल बी लॉट्स ऑफ फन, लॉट्स ऑफ नॉलेज, एंड आई बिलीव आप लोग जितना पार्टिसिपेट करोगे, जितना मेरे को चैट बॉक्स भरते हुए दिखेगा, उतना मेरे लिए भी मजा आएगा. वरना सोने के लिए तो मैं भी यहाँ पे नहीं आया हूँ, ना आप लोग आए हो. आपको आपका 1 घंटा वेस्ट नहीं करना है, ना मुझे वेस्ट करना है. सो गाइज आई विल टेल यू ऑल, जितना इंटरेक्टिव रहोगे उतना बढ़िया है, वरना मुझे तो नींद आ जाएगी ऑनेस्टली. फ्यू क्वेश्चंस. सो फर्स्ट, नाउ आई वांट द चैट बॉक्स टू सी फिलिंग. ओके, डेंजरस गुड्स क्या होता है आपके हिसाब से? क्या है डेंजरस गुड्स? क्या आप लोगों को कोई बेसिक आइडिया है कि डेंजरस गुड्स क्या होता है? प्लीज लेट मी सी द चैट बॉक्स में आंसर्स. कम ऑन कम ऑन, फटाफट फटाफट फटाफट. किसी को भी नहीं पता है शायद. ठीक है, फाइन, देखते हैं. गैस ऑयल, ओके, किसी ने गैस ऑयल लिखा है. ओके, केमिकल्स, ओके, केमिकल्स, क्रूड ऑयल, ओके ओके. सो आप लोग को एक बेसिक आइडिया तो है कि डेंजरस गुड्स क्या होता है. दैट इज वंडरफुल. ओके, गिव सम एग्जांपल्स. ओके, आप लोग ऑलरेडी मेरे को एग्जांपल्स तो दे रहे हो. हार्मफुल पेट्रोल, ओके ओके. हजार्डस केमिकल, अंडरस्टूड. हजार्डस मटेरियल हैंडलिंग, ओके, गुड 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 गुड. नाउ, डू यू हैव डेंजरस गुड्स एट होम? क्या आप में से कोई भी मुझे डेंजरस गुड्स जो आपके घर पे रहता है उसका कॉमन एग्जांपल दे सकते हैं? घर पे हमारे कौन से डेंजरस गुड्स रहते हैं? क्या हमारे घर पे कोई डेंजरस गुड्स है? एलपीजी किसी ने लिखा है. वाओ, दैट इज ब्यूटीफुल. सो पीपल आर ऑलरेडी अवेयर ओवर हियर कि हम टॉयलेट क्लीनर, वाओ, वंडरफुल. क्लीनिंग लिक्विड, डिटर्जेंट्स, मतलब डिटर्जेंट्स, राइट? चैतन्य धोत्रे, राइट? डिटर्जेंट्स, क्लीनिंग लिक्विड हम लोग बोल सकते हैं. गैसेस, ओके, दैट्स गुड दैट्स गुड. नाउ, व्हाई डू यू थिंक ट्रेनिंग ऑन डेंजरस गुड्स इज रिक्वायर्ड? आप लोगों को क्या लगता है ट्रेनिंग ऑन डेंजरस गुड्स हम लोग क्यों ले रहे हैं? ये जरूरी क्यों है? सो ये सब जो क्वेश्चंस है, अगर आपको नहीं भी आ रहे, किसी ने आंसर नहीं किया, दैट इज ओके, बिकॉज यही सब क्वेश्चंस है जो मैं आप लोग को आगे कवर अप कराऊंगा ये सेशंस में. एंड बाय द एंड यू विल नो कि ट्रेनिंग क्यों लेते हैं, डेंजरस कुछ क्या है, मुझे डील करना चाहिए उसके साथ कि नहीं करना चाहिए, अगर मुझे आता है, नहीं आता है, मैं क्या कर सकता हूँ आगे. ओके, सो लेट्स टेक इट मोर फर्दर अहेड. नाउ, डेफिनेशन ऑफ डेंजरस गुड्स. Dangerous goods are articles and substances which are capable of posing hazard to health, safety, property, and environment. So now here we can see the basic common examples. अपने वर्ल्ड में आजू बाजू में क्या चल रहा है, वर्ल्ड वॉर काइंड ऑफ हो चुका है शुरुआत. एंड यहाँ पे अगेन प्रॉपर्टी, एनवायरमेंट, सेफ्टी से लेके सब कुछ डैमेज हो रहा है. क्या एनीवन एल्स कैन गिव मी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ डेंजरस गुड केमिकल लीक्स? Any examples if you all know of dangerous goods chemical causing hazard to the environment or anything like that? If not, I'll give example. One is the Bhopal gas leak. भोपाल गैस लीक जो काफी पहले अपने इंडिया में हुआ था एंड अभी तक उसके इफेक्ट्स है. हिरोशिमा नागासाकी, उसके भी इफेक्ट्स आप देख सकते हो. न्यूक्लियर बॉम्ब था जो जिससे डेंजर हार्म हुआ था. सो दीज आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ डेंजरस गुड्स कॉजिंग
damages in our environment to health, safety and property and environment, everything. Okay. So, okay. एक बार एग्जांपल मैं देता हूँ डेंजरस गुड्स का। किसी ने मेरे को पूछा था, मेरे स्टूडेंट ने, उससे मुझे याद आया कि चलो ये भी आज मैं शेयर कर देता हूँ इधर। सो क्या चाकू डेंजरस गुड्स है? कमेंट यस और नो। कमेंट यस और नो। आपने अभी डेफिनेशन पढ़ा है उसके हिसाब से, डू यू थिंक नाइफ कैन बी अ डेंजरस गुड्स? कम ऑन स्टूडेंट्स, आई नीड योर रिस्पॉन्सेस, कम ऑन। इट्स वेरी इजी, यू डोंट हैव टू थिंक। हाँ या ना? Yes, yes, Chaku is a danger. Okay, 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 okay. Okay, the chat box is rolling. Happy to see that. Okay, so क्या भी मैं बोलूं कि चाकू डेंजरस कुछ नहीं है? अगर मैं चाकू को सिर्फ मेरे एक कैबिन के डेस्क के ऊपर रखूं, क्या चाकू खुद आके मुझे हार्म करेगा? नहीं। क्या वो खुद आके कुछ रिएक्ट करेगा? नहीं रिएक्ट करेगा। सो इधर जो डेफिनेशन, और डेफिनेशन में क्या लिखा है मैंने, डेंजरस गुड्स आर्टिकल्स एंड सब्सटेंसेस विच आर केपेबल ऑफ पोजिंग, मतलब उसमें क्षमता हो सकती है। चाकू में ऐसी कोई क्षमता नहीं है कि वो खुद से रिएक्ट करेगा। हेंस चाकू डेंजरस गुड्स नहीं है। ओके। सो नाउ वी नो डेंजरस गुड्स के बारे में हम लोगों ने इतना डेफिनेशन देख लिया, ये सब देख लिया क्या होता है, उससे कितना कॉज हार्मफुल है। तो भी हम लोग को डेंजरस गुड्स को कैरी क्यों करना है? मजा आ रहा है कैरी करने के लिए इसलिए करना है, या किसी ने बोला गया है कि साइमन सेज हम लोग खेल रहे हैं इसलिए हम लोग को कैरी करना है? व्हाट इज द रीजन? What is the reason you all think? Needed energy supply. Okay, okay, energy supply. Alabhya Singh, thank you for business. That is the answer that I am looking. Chaitanya Dhotre, that is a wonderful answer. बिजनेस, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नीड होता है। कोई भी कंट्री सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता। एक कंट्री अगर सप्लाई कर रहा है तो दूसरे कंट्री में डिमांड है, अगर दूसरे कंट्री में डिमांड है तो एक कंट्री उसको सप्लाई करेगा। इट कैन बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। 100% परफेक्ट अंशुल, थैंक यू। जरूरत के अनुसार, बराबर। समरेश कुमार, थैंक यू। सो लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ इट। पैसेंजर कंफर्ट। सो पैसेंजर कंफर्ट के लिए हम लोग को करना पड़ता है पैसेंजर कंफर्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर्स में, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, क्लियरली दिख रहा है कि लिथियम बैटरीज, फोन्स में लिथियम बैटरीज होता है, जो हेडसेट लगा है उसमें भी लिथियम बैटरीज होता है। सो लिथियम बैटरी भी डेंजरस गुड्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हील व्हील चेयर के साथ भी बैटरीज आती है एक्स्ट्रा। सो वो भी डेंजरस गुड्स है इन द एंड। ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, दैट आल्सो कम्स अंडर डेंजरस गुड्स। बट तो भी वो पैसेंजर एयरक्राफ्ट, तो भी वो एयरक्राफ्ट पे अलाउड होता है। स्टिल आफ्टर नोइंग एवरीथिंग, इट इज देयर ऑन द पैसेंजर। व्हाई? बिकॉज ऑफ द पैसेंजर कंफर्ट। नेक्स्ट, नाउ सेफ ऑपरेशन। सेकेंड इज सेफ ऑपरेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट। सेफ्टी ऑफ ऑपरेशन के लिए क्या क्या जरूरत होता है? बैटरीज है, फायर एक्सटिंग्विशर है कहीं आग लग गई तो, देन आपकी सेफ्टी वेस्ट जैकेट्स है, ये जिस जो डेंजरस गुड्स क्लास 9 में आते हैं। सो दिस इज ऑल्सो द वन रीजन दैट वी कैरी डेंजरस गुड्स। ऑल्सो द थर्ड रीजन फॉर सेफ्टी आई गिव यू इज फ्यूल। फ्यूल भी एक डेंजरस गुड्स है। जैसे किसी ने लिखा था पेट्रोल डेंजरस गुड्स है, तो भी तो पेट्रोल एयरक्राफ्ट में रहता है, क्यों हम लोग करते, तो भी हम लोग उसमें फ्यूल करते हैं। भाई, बिकॉज इट इज नीडेड टू फ्लाई। अगर वो रहेगा नहीं तो एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं हो पाएगा, राइट? नाउ कमर्शियल डिमांड। Commercial demand, I guess, one of my classmates just mentioned, Mr. Dhotre, that business के लिए related है, business के लिए जरूरत है, correct? So this is the reason. You can see paints being carried, you can be oils, alcohol being carried, dry ice also being carried on an aircraft. आप छोटे से छोटा चीज लो, पिन से लेके पेन तक, पिन से लेके प्लेन तक, everything is carried on the aircraft and also by sea. But here what we are covering is majorly by air. Okay. कमर्शियल डिमांड है, नेशनल इमरजेंसी, ये तो सबसे बेस्ट बेस्ट एग्जांपल है। एवरीवन राइट नाउ ओवर हियर एट दिस point of view sitting with me in the session, everyone knows what the world situation is going on. तो इस पे अगर मैं ब्रीफ भी नहीं करूंगी, you all will understand what the world situation is. सबको आर्म्स एंड एम्यूनिशन की जरूरत है, बुलेट्स की जरूरत है, मिसाइल्स की जरूरत है। तो जो भी कंट्री फुलफिलिंग नहीं है इतनी, उसको
कोई ना कोई कंट्री को उधर सप्लाई करना पड़ेगा, राइट? नाउ व्हाट अफेक्ट्स डेंजरस गुड्स? एक एयरक्राफ्ट कितने 30,000 फीट अबव द एयर फ्लाई करता है, वहां पे अगर कुछ भी मिसहैप होता है डेंजरस गुड्स के कारण, तो कोई सुपरमैन वहां पे नहीं आने वाला आपको सेव करने के लिए, और नीदर एनी एयर एम्बुलेंस विल कम ओवर देयर टू सेव यू फ्रॉम द फॉलिंग एयरक्राफ्ट। वंस यू डोंट पैक the material in a good manner, it can cause damage above to the whole aircraft, to the life of the passenger, to the safety of everyone, to the safety of the people living on the ground as well. सो इसके लिए प्रिकॉशंस लेना क्या किधर जरूरत है? ग्राउंड लेवल पे। आप ग्राउंड लेवल पे स्ट्रिंजेंट पैकिंग करोगे, ग्राउंड लेवल पे सब कुछ बराबर करोगे। ओके, नाउ एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी मतलब ये सेक्शन कहाँ से आया है, किधर अप्लाई करता है, किसको अप्लाई करता है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन द एप्लीकेबिलिटी। नाउ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो डेंजरस गुड्स को हैंडल करता है, ऐसे तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वर्ल्ड वाइड आप देखोगे तो आईकाओ है, आईटा है। सो एवरी नेशन हैज इट्स ओन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। द वे एवरी नेशन हैज इट्स ओन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इंडिया का एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। डज एनीवन नो एनीथिंग अबाउट इट? इफ यस, सो प्लीज comment below in the chat box. I need to see if anyone is aware of the competent authority of India by air. Anyone, anyone? So let me speak about it. It is DGCA, Dangerous Goods. Exactly, DGCA, Director General of Civil Aviation. Wonderful, Nitin. Wonderful. Thank you so much for being responsive. सो ओके, एज मैंने बोला डेंजरस गुड्स के लिए डीजीसीए है, वैसे ही रेडियो एक्टिव मटीरियल है। रेडियो एक्टिव मटीरियल के लिए भी एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। आर यू अवेयर ऑफ दैट? Krishna, thank you, but you are a bit late, but thank you so much still. So, okay, as there are two parts. Okay, no, okay. So, one is for radioactive material, that is Atomic Energy Regulatory Board, for radioactive material only. तो कोई भी radioactive material से related कुछ भी incidents, accidents reporting चाहिए तो वो AERB के पास जाएगा, और अगर dangerous goods के related चाहिए तो वो कहाँ जाएगा? DGCA के पास जाएगा, जैसे कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ओके, सो बेसिकली इन लोग क्या करते हैं? इन लोग रूल्स, रेगुलेशन, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स, किसको ट्रेनिंग जरूरत है, किसको ट्रेनिंग नहीं जरूरत है, इंसिडेंट हुआ तो क्या करने का, एक्सीडेंट हुआ तो किसको रिपोर्ट करने का, ऑल दिस विल बी कवर्ड बाय दिस टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। नाउ ट्रेनिंग क्यों जरूरत है, किससे जरूरत है? बिकॉज एज मैंने आपको बताया सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं। आपको डेंजरस गुड्स के बारे में पैकिंग रिक्वायरमेंट्स जानना है, सो वो सब के लिए ट्रेनिंग जरूरत है। और किसको ट्रेनिंग जरूरत है? एनीवन क्लियर्ड इट्स 12 फॉर हैंडलिंग द सेम। करेक्ट, करेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। लीगल एंड मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स के कारण जरूरत है। Please repeat the last slide. Okay, I'm repeating it for you, Mr. Pankaj Bora. डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के पास डीजीसीए। सो डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इंडिया में जो डेंजरस गुड्स को हैंडल करेगा। एंड जो ईआरबी है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल को स्टैंडर्ड सेट करेगा। ओके, सो आई होप योर पार्ट इज क्लियर नाउ। That's a good answer, Rajat. Of course, training is required for those person who will be involved in the activity, but I will believe that जो person involved नहीं है पर वो अगर ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहे हैं एज एक्सेप्टेंस ऑल्सो, उन लोग को भी जरूरत है। बिकॉज उन लोग को जानने के लिए कि केमिकल्स कितने कैटेगरी के होते हैं, नॉट रिस्ट्रिक्टेड एंड रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज होते हैं। सो अगर आपको पता है कि डेंजरस गुड्स क्या है, तो आप ये भी जान पाओगे कि नॉट रिस्ट्रिक्टेड आर्टिकल्स कौन से हैं। So, whoever dealing in cargo sector, I believe everyone should take a minimum DGA awareness training program. Okay. Now, किस किस को भी जरूरत है? शिपर, फ्रेट फॉरवर्डर्स, एयरलाइन एम्प्लॉइज, ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज। So these are the people who require trainings and because of the legal and mandatory requirements imposed by the competent authorities.
So, DGCA won't be authorized for the rail, for the roadway. For roadways, there is a different competent authority. I clearly mentioned that today what we are covering it's majorly by air. Okay. I hope your answer question is answered, Mr. Alabaya Singh. Okay. So these are the competent authorities. ITA and ICA are the competent authorities worldwide, and DGCA is the competent authority for India. Now, limitations. So this has limitations as well. कौन से limitations है, क्या limitations है, वो हम लोग check करेंगे. Dangerous goods की categories होती है, जैसे forbidden dangerous goods. Forbidden dangerous goods में further दो categories आती है, totally forbidden and forbidden unless exempted. Totally forbidden मतलब अगर आपका aircraft पे जा रहा है, aircraft दो तरीके के होते हैं, passenger और cargo aircraft. Totally forbidden मतलब ना वो पैसेंजर पे जा सकता है ना वो कार्गो पे जा सकता है. तो कोई भी वो टोटली फॉरबिडन है, मतलब जाएगा ही नहीं, किधर भी नहीं जाएगा. दोनों एयरक्राफ्ट में से किधर भी उसको एग्जाम्पशन कुछ भी नहीं मिलेगा. टोटली फॉरबिडन. फॉरबिडन अनलेस एग्जेम्प्टेड. तो फॉरबिडन अनलेस एग्जेम्प्टेड मतलब उसको कुछ गवर्नमेंट ने स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशंस अलाउ किए हैं कि वो इतने लिमिट में जा सकता है. जैसे क्लासरूम्स में जब हम लोग स्कूल में थे या कॉलेजेस में थे, एक स्टूडेंट होता था जो स्पेशल एग्जामेशन लेके आता था. समवॉट लाइक कभी कभी स्पेशली एबल्ड चाइल्ड्स होते हैं, सो उन लोग के लिए कुछ स्पेशल एग्जाम्पशंस रहते हैं. वैसे ही डेंजरस गुड्स में भी कुछ आर्टिकल्स एंड सब्सटेंसेस रहते हैं हु गेट स्पेशल एग्जाम्पशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट. ओके. एंड द गवर्नमेंट इज हु? द डीजीसीए. यस, करेक्ट मिस्टर मनीष, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. बिकॉज अगर आप एक्सप्लोसिव देखोगे तो एक्सप्लोसिव जनरली फॉरबिडन रहते हैं, बट कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं कुछ सिचुएशन टाइम्स पे, जैसे वॉर के टाइम्स पे आपको गवर्नमेंट एग्जेम्पशन देती है कि आप उसको एयरक्राफ्ट से कैरी कर सकते हो, जो आप नॉर्मल टाइम्स पे कैरी नहीं कर सकते. सो दिस इज हाउ इट इज. ओके. नाउ, फॉरबिडन डेंजरस गुड्स. Any articles or substances which, as presented for transport, is liable to explode, dangerously react, produce flame, dangerous emissions of gases or vapor must not be carried on aircraft under any circumstances. That is ये totally forbidden है, as I said above. Okay. So let's cover the classifications now. Classifications में 9 types of classes होते हैं, reflecting the types of hazards they involve. Okay. Now, class 1 explosive, class 2 gases, class 3 flammable liquids, class 4 flammable solid, class 5 oxidizer and organic peroxides, class 6 toxics and infectious substances, class 7 is your radioactive material, class 8 is corrosive material, class 9 is miscellaneous dangerous goods. एक एक क्लास को हम लोग ब्रीफली थोड़ा देखेंगे, बिकॉज एज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम. ये जनरली कोर्सेज जो होते हैं 6 days के कोर्सेज होते हैं, विच वी आर डूइंग ओवर हियर इन 1 hour. ओके. सो I won't be focusing much on every PPT, but yes, आपको मैं यहाँ से make sure करूंगा that you have the basic awareness, knowledge of dangerous goods. Okay. Now, explosive. एक्सप्लोसिव एक ऐसी चीज है जो हम लोग बचपन से हमारे हाथ में, दिवाली में हम लोग every time we are bursting crackers and everything. So those are the basic explosive. That is just a small level I'm saying. But यहाँ पे जो explosive की बात हो रही है वो डायनामाइट से लेके आरडीएक्स की बात हो रही है. टीएनटी, डायनामाइट, आरडीएक्स. ओके. नाउ एक्सप्लोसिव आर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज. जैसे दिवाली के बॉम्ब में आप लक्ष्मी बॉम्ब है जो आप हाथ में भी फोड़ सकते हो, राइट. एंड जैसे रस्सी बॉम्ब है वो थोड़ा मैसिव अमाउंट में बर्स्ट होता है. आप उसको, कुछ कुछ लोग हैं जो उसको हाथ में बर्स्ट करना अवॉइड करेंगे. वैसे आई टेल, डोंट डू दैट इन हैंड प्लीज. इट इज वेरी डेंजरस, बट एज पीपल आर डूइंग दैट, मैं आपको एक्सप्लोजन का जो हजार्ड है मैं वो बता रहा हूँ. जैसे लक्ष्मी बॉम्ब बहुत स्मॉल अमाउंट में बर्स्ट होगा, बट अगर वही आप रस्सी बॉम्ब देखोगे वो ग्रीन कलर का आता है, राइट. तो वो एक उसका जो बर्स्ट है वो काफी लाउड एक्सप्लोजन होता है. सो वैसे ही एक्सप्लोसिव कुछ कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, फ्रॉम डिवीजन 1.1 से लेके 1.6 तक. ओके. उसके ये लेबल्स है यहाँ पे 1.1 से लेके 1.6. वैसे ही इसमें फर्दर एक सेग्रीगेशन आता है जो कंपैटिबिलिटी ग्रुप बोलते हैं, फ्रॉम ए टू लेके, फ्रॉम अल्फाबेट ए टू अल्फाबेट
S. Compatibility 13 groups है. Now if people will ask me what is compatibility group, मैं वही बोलूंगा compatibility group. जैसे it's a very common example and जिसके शादी के रिश्ते आते हैं उसमें जनरली पंडित जो होता है वो बोलता है कि इन लोग का 32 गुण है जो मिलना चाहिए, राइट? 32 गुण, दैट इज द कंपैटिबिलिटी पार्ट. वैसी कंपैटिबिलिटी के लिए इधर 13 ग्रुप्स है जो ए टू लेके अल्फाबेट ए टू एस में डिवाइड किया हुआ है. सो कौन सा किसके साथ जा सकता है, कौन सा किसके साथ कंपैटिबल है, दिस इज व्हाट इट कंप्लीटली मीन्स. So this is all about class one. If you have not handled this properly, this is the cargo sector of the aircraft. Fireworks rakha tha, and see how badly it has been affected. And this airplanes cost dollars, crores, millions, right? And this is really not acceptable in keeping it in such a bad manner. So hence, a knowledge and a training is really necessary. क्लास टू गैसेस. नाउ वी ऑल आर अवेयर ऑफ गैसेस की जैसे मैंने डेंजरस गुड्स के बारे में पूछा, आई सी मेनी पीपल गिविंग एलपीजी एग्जांपल्स, दैट इज गैस क्रूड ऑयल एंड एवरीथिंग. सो आई बिलीव एवरीवन नोज दैट गैसेस कम्स अंडर डेंजरस गुड्स. नाउ गैसेस में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फिजिकलिटी स्टेट्स होते हैं. वी विल सी अबाउट दैट फिजिकल स्टेट्स. compressed gas, liquefied gas, refrigerated liquefied gas, dissolved gases and absorbed gases. Okay. So यहाँ पे काफी एग्जांपल्स आप देख सकते हो इन द इमेजेस. सो ये सब इमेजेस है. जैसे एलपीजी अपना लिक्विफाइड गैस है, रेफ्रिजरेटेड लिक्विफाइड गैस, डिसॉल्व्ड गैस, एब्जॉर्ब गैस. सो अभी अगर क्लास टू में आप देखेंगे उसमें कुछ तीन डिविजन है 2.1 से लेके 2.3 तक. 2.1 आपका क्या बोलता है, 2.3 के 2.1 क्या बोलता है. Yes. I think it got stuck because of some technical glitch. But yes, in the meanwhile, you can, based on whatever you see on the screen, right? I'm audible, correct? Yes, okay. So based on the screen, you can mention as per your understanding of what you think about, three divisions of glasses. Okay. Rachit will be joining in shortly. Also, you can let us know how you're, finding the information that you're knowing right now through this session. This is a very interesting topic, and even for that matter, I am attending it for the first time. So I believe we all are learning a lot from it, right? Yes, Alka, Rachit will be joining shortly. So I think because of some technical glitch, he was not able to, connect with the internet right away. Yeah. Okay, Anand. I guess you'll have to be more particular. Thank you, Pankaj. Very informative session. Okay. Mm-hmm. Anybody wants to share anything? Someone who is, already aware of few things from it, they can come in and share what they know. Yes, Vijay, definitely a good learning session. Please raise your hand if you know you want to share something in the meanwhile. Rachit is going to be back with us shortly. Okay.
More insights. Definitely. Organized. Thank you so much, Roshan. I have some queries. Okay. Okay, I think for this, we will be answering you shortly, Ranjit. Yeah, anybody who would want to share something, maybe you can unmute yourself and you can tell us. Rachit says that he'll require 2 more minutes. So, in the meanwhile, कुछ बताना चाहते हो, कुछ शेयर करना चाहते हो, अभी तक हमने जो सीखा है इस सेशन से उसके उसके बारे में बोलना चाहते हो, या अदरवाइज भी इफ यू नो एनीथिंग यू कैन रेज योर हैंड. No, that won't be possible, Roshan. Okay, how? Okay, airline in HR domain. Okay, I think that will be answered by Rachit only, Khushi. Other than that, if needed, we will discuss about it later on. Maybe someone who is, aware of this domain. Ranjit, would you want to share something? Yeah, this will be shared, not the whole deck for sure, but as per whatever Rachit feels that it is required, Rachit will be sharing the main required PPT with us, okay, with the very specific pointers, so that we will be sharing it with you, right? Okay, I think Rachit is back. So, okay, definitely it will help. Okay, department, but So, till now, department and the class. Okay, we can do that. Yes. Okay, Rachit. okay, Yeah, hello. give me a moment. Yeah. Thanks for waiting. There was a bit technical error. I was just figuring out. Okay, best. Welcome back. We were eagerly waiting for Thank you, you. thank you, thank you. Yeah. So, in the meanwhile, Rachit shares his Yes, PPT. If anybody has any question with Rachit, you can you are definitely open ask in for. the chat box. Okay. As we Even if you go all with the can come remaining on the mic, session. if Yeah. okay. So, is anyone there? You all have any questions to deal with, or you have got any doubts? Please come on the mic, and that will be really good if we can have a one-on-one interaction for that. Okay. So I think Roshan, this question is for me. I'm from civil department, but I'm till now our department no classes were organized from your side. You mean if you mean on Synergy Sphere, see, Synergy Sphere is a platform where we invite your classmates, yourself, or MITSD learners to come in and share their knowledge. So as per that, like Rachit himself came along, raised a ticket, and he wanted to be a speaker. So we had a word, and then after everything, now he's a speaker at Synergy Sphere. Similarly, you can also come over. I had already shared the being a speaker link with you all. You can definitely, uh, fill out the form and I will reach out to you, and then we can arrange a civil department lecture for everyone. So from one of you, if someone is interested who has, good enough knowledge and experience, they can definitely come in and share their knowledge. We will be more than happy to have you here. Right, Rachit? Yes. Does Okay. anyone has any questions? You can come up and speak about it. If you have any of your point of views, what you think about the paths I said, that will also be very great. आपके लिए भी knowledgeable रहेगा, मेरे लिए भी knowledgeable रहेगा. We can be both at the same end, right? So come up if you all have any questions of dangerous goods, और maybe ऐसा भी हो सकता है शायद लॉजिस्टिक रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो जो शायद मैं आपको हेल्प कर दूं. So Yes, you so all are I free to think, ask. Rachit, we have one question. Yes. If you are able to answer it. So, how to become Okay. a airline Okay.
part of airline in HR domain? Is the question. So if you know anything at all about it, I HR think domain, no, I'm not related to HR. I'm okay, not आई एम नॉट रियली रिलेटेड टू एचआर, सो एचआर के लिए मैं यही बोलूंगा एमआईटी को कांटेक्ट करो, वहां पे एचआर का पार्ट पिकअप करो एंड जस्ट हेड अप टू एयरलाइंस वेबसाइट। एयरलाइन वेबसाइट में आपको ये सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगा अबाउट ऑल द ओपनिंग्स। amazing. Okay. Thank you so much for answering that, Rachit. I believe most of your classmates they are able to understand whatever you have shared so far. And yeah, ओके yes, please continue with the remaining. Thank you. ओके ओके, थैंक यू सो मच। The PPT is visible. So as I was discussing, क्लास वन कंप्लीट किया, जहाँ पे क्लास वन में 1.1 से लेके 1.6 तक डिविजन्स है फ्रॉम असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट? एंड क्लास टू वी कैन सी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ physical states of gases: compressed gas, liquefied gas, refrigerated liquefied gas, dissolved gases and absorbed gases. सो ये सब कुछ कैटेगरीज है, कुछ हम लोग के घर पे ही रहती है, एसी में है, कुछ कुछ रेफ्रिजरेटर्स में है, कुछ आपके गैस बर्नर्स में है जैसे एलपीजी सिलेंडर्स। सो ये सब आपकी फिजिकल स्टेट ऑफ गैसेस का एक कॉमन एग्जांपल है। ऐसा नहीं है कि आपको लर्न करना है ये सब, बट आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए जानना है कि क्या होता है ये और कहाँ कहाँ ये सब आपके आजू बाजू में ही है। इट्स नॉट दैट दिस इज समथिंग वेरी न्यू। आप हर बार डेंजरस गुड से घिरे हुए हो, फिर वो घर हो चाहे ऑफिस हो चाहे आपका एनी एनी एनवायरनमेंट। आप हाईवेज पे ट्रैवल कर रहे हो, हाईवे पे भी आपको ट्रक कैरी करते हुए दिखेगा, एक पेट्रोल का बड़ा सा टैंकर रहेगा जिसमें पेट्रोल लेके जा रहा रहेगा, उस पे लेबल्स लगे हुए रहेंगे। व्हाट इज इट? इट इज डेंजरस गुड्स। ओके, सो let's see. There are three divisions. This is what where we stopped. 2.1 से लेके 2.3. 2.1 is flammable gas. 2.2 is non-flammable, non-toxic. 2.3 is toxic gases. Now, any gas when mixed with air in a certain proportions forms a flammable mixture. That is a flammable gas. That is your LPG. Common example, flammable gas. कि एक सर्टन के बाद आप अगर लाइटर जलाते हो तब जाके वो बर्नर जो है वो फ्लेम आगे फेंकता है। दिस इज व्हाई इट इज मेंशन दैट एनी गैस व्हेन मिक्स्ड विद एयर इन सर्टेन प्रोपोर्शन फॉर्म्स अ फ्लेमेबल मिक्सचर एंड दिस कम्स अंडर फ्लेमेबल गैस। ओके, जिसे बोलते हैं एलपीजी। ओके, कॉमन एग्जांपल। और आपका लाइटर। सो दिस इज द लेबल। ये लेबल मैं आपको आगे भी करवाऊंगा, जो लेबल था रेड कलर का वो लेबल्स मैं आपको आगे भी मार्किंग एंड लेबलिंग में करवाऊंगा। सो नॉन फ्लेमेबल नॉन टॉक्सिक गैस, दिस इज माय वन ऑफ माय फेवरेट। in 2.2 this is one of my favorite gas. Why? Because I myself have tried this gas and I can say commonly that ये एक ऐसी गैस है, जब आप टीवी पे देखे रहोगे काफी गेम्स में, दैट एक बलून देते हैं पार्टिसिपेंट को, उसको बोलते हैं इनहेल करने, एंड दे हैव टू स्पीक, एंड व्हेन दे स्पीक your voice changes into a chipmunk voice. So that gas name, क्या मुझको कोई गैस का नेम बता सकता है कौन सा गैस होता है वो बलून्स में? Anyone, if you all know about it. 2.1 slide repeat. So 2.1 में जो था flammable gas था, पंकज right? So पंकज 2.1 was flammable gas. Flammable gas is your LPG gas. Okay, for 2.2 what I'm covering, I'm getting answer from Manish Prasad. That is helium. That is the answer I was looking for. इट इज हीलियम गैस। सो वो हीलियम गैस ऐसी है जो आप इनहेल कर रहे हो, है डीजी में आती है, बट आप उसको इनहेल कर रहे हो, मतलब ये नॉन टॉक्सिक नॉन फ्लेमेबल गैस है। पर अगर ये नॉन टॉक्सिक नॉन फ्लेमेबल गैस है तो फिर डीजी में क्यों आ रहा है? इन सर्टेन प्रोपोर्शंस आप उसको इनहेल कर रहे हो। अगर आप उसको मेजर प्रोपोर्शंस में हील करोगे तो योर माइंड कैन बी अनकॉन्शियस, यू माइट फॉल, एंड इवन योर इफ इट इज इन अ मेजर क्वांटिटी आपका हार्ट भी स्टॉप हो सकता है। सो दिस इज व्हाई इट इज डेंजरस गुड्स। इन द एंड यू आर प्लेइंग विद अ गैस। ओके, देन देयर इज आल्सो वन गैस दैट इज अ लाफ्टर गैस। So, ये सब डेंजरस गैसेस है बट एक मात्रा में सही है। जैसा हम लोग हर बार बचपन से सुनते आ रहे, एवरीथिंग इन लिमिट इज ओके। सो दिस इज हाउ इट इज सेड। अनदर एग्जांपल्स यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन गैस एंड फायर एक्सटिंग्विशर गैसेस। आपके लिए पिक्चर्स भी यहाँ पे है फायर एक्सटिंग्विशर्स के।
ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ 2.3। 2.3 ये लेबल्स है ना, हम लोग हर बार किधर ना किधर देखे रहेंगे, आपको रिकलेक्ट भी होगा। बट ऐसा एक और लेबल है जो क्लास 6 में आता है। सो एक लेबल है जो 2.3 टॉक्सिक गैस है, दूसरा है जो टॉक्सिक सब्सटेंस है। टॉक्सिक गैस और सब्सटेंस में काफी डिफरेंस है। गैस का फिजिकल स्टेट अलग है, टॉक्सिक सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट अलग है। सब्सटेंस को आप देख सकते हो, गैस को आप नहीं देख सकते। सो जो लेबल्स रहेगी आपको दिखने में काफी सेम लगेंगे, बट उसके नीचे एक डिफरेंस रहेगा, जो 2.3 एंड क्लास 6 का लेबल में क्लास 6 का लिखा हुआ रहेगा। ओके, सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। नाउ टॉक्सिक गैस क्या होती है, लेट्स सी व्हाट इज द टॉक्सिक गैस। Gas is known to be toxic or corrosive to human and to pose a health risk is known as toxic gas. इसमें है मिथाइल ब्रोमाइड, एरोसॉल्स एंड गैस कार्ट्रिजेस। सो ये सब इसके कॉमन एग्जांपल्स है, आपको एग्जांपल्स का कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आपको अभी ये समझना है कि वो क्या चीज है। ये समझोगे तो आप किधर भी उसे देखोगे तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप लोग को कि आप इसे एग्जांपल्स मत पूछो या समथिंग, यू आर ओपन टू आस्क मी द क्वेश्चंस, बट राइट नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस व्हाट वी हैव। अच्छा, लेट्स सी, अभी ये स्लाइड 2.3 चालू है। कैन यू नेम मी क्लास 1? कैन एनीवन नेम मी व्हाट वाज क्लास 1? लेट्स सी किसको याद है। कैन यू नेम मी क्लास 1? क्लास 1 का नाम चाहिए मुझे, अदरवाइज आई एम मूविंग। इफ आई डोंट 5 seconds, if I'm not getting, I'm moving it to next slide. 1, Yes. 2, Rachit, there 3, is. 4, 5. So class 1, Are, Alabia Singh. Thank you so much. Thank you so much. Class 1 is explosive. It has 6 division, 1.1 से लेके 1.6. Okay. Yes, Rachit. So can you also So explain class what 3, is? flammable liquid. Am I audible? Yeah. Kindly explain what is gas Yes, yes, you're audible. cartridge. Just once. Okay. सो गैस कार्ट्रिजेस आप देखोगे, गैस कार्ट्रिजेस काफी इसमें मशीन्स वगैरह में यूज होता है। जैसे अभी गैस का शॉर्टेजेस हो रहा है, तो काफी एयरटेल की कंपनीज जो है उन्होंने बोला है कि गैस के शॉर्टेजेस के कारण नेटवर्क में भी प्रॉब्लम आएगा। तो कभी कभी गैस के फॉर्म्स को चेंज किया जाता है। जैसे कार्ट्रिजेस होते हैं उसको गैस कार्ट्रिजेस के फॉर्म में लिया जाता है, इसलिए वो टॉक्सिक है। सो इसलिए मैं आपको ऊपर ऊपर से यहाँ पे बता रहा हूँ, नॉट गोइंग इन डीप। It's just as any other cartridge, but it is a gas cartridge. Okay. So class 3 तो हमारे घर सबके घर पे है, चूल्हा, द गैस। ओके, sorry, class 3 flammable liquids. I mean, so flammable liquids is the best example. Alcohol. सब यहाँ पे तो सब लोग सैटरडे नाइट है आज, सब लोग वेट कर रहे रहेंगे ऑफिस से निकलने के बाद पार्टी करने का। सो अल्कोहल, पेट्रोल एंड पेंट्स इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर फ्लेमेबल लिक्विड्स, दैट इज क्लास 3। ओके, नो, एक फ्लैश पॉइंट होता है, मतलब वो कितने टाइम में हीट होता है। जैसे आप घर पे दूध दूध मिल्क मिल्क जब आप दूध वाले से लेते हो, आप गैस पे रखते हो, देयर इज अ सर्टेन टेम्परेचर इट टेक्स टू गेट हीटेड, एंड इट टेक्स अ सर्टेन टेम्परेचर टू बॉयल। दैट इज द फ्लैश पॉइंट, द टाइम इट बॉइल्स इज द फ्लैश पॉइंट ऑफ द केमिकल। वैसे ही वो फ्लैश पॉइंट को डिनाई करने के लिए उसके लेबोरेटरी में टेस्ट होते हैं, वो साइंटिस्ट ही बता सकते हैं। आई एम नॉट अ साइंटिस्ट, बट यस, आई एम स्टिल अवेयर ऑफ द बेसिक पार्ट्स। सो दिस इज व्हाट आई एम ब्रीफिंग यू ऑल अबाउट द सेम। ओके, so this is a liquid in red color gas, I mean liquid है, एंड प्लस फायर फेंकता है, इसलिए उसका आप लेबल देखोगे, सब लेबल्स भी सोच समझ के बनाए हुए हैं। इट्स बर्निंग, इट्स बर्निंग, दैट्स व्हाई इट इज इन रेड, एंड दैट हैज अ फायर लोगो ऑन इट। नाउ क्लास 4 डिविजन 1.6, क्लास 2 में डिवीजन था, डिवीजन 1.1 से लेके डिवीजन 2.3। क्लास 3 में कोई डिवीजन नहीं था। नाउ क्लास 4 हैज अगेन 3 divisions, that is 4.1, 4.2 and 4.3. This all are segregated properly in a manner. First is flammable solid. So class 2 था flammable gas, class 3 था flammable liquid, class 4 is flammable solid. So let's check the example just. क्लास 4 फ्लेमेबल सॉलिड आपका माचिस,
एनी मटेरियल विच इज रेडिली कंबस्टेबल। आप माचिस निकालते हो, वो रेडी रहता है, आप सिर्फ उसको ऐसा स्पार्क करोगे, जल गया, राइट? सो दिस इज व्हाट क्लास 4.1 डिवीजन 4.1 stands for. 4.2 spontaneously combustible. Now, spontaneously combustible is another very good example. I believe जो भी millennials है उन लोग ने तो किया रहेगा। जेनजीस का मैं यहाँ पे गारंटी कोई दे नहीं सकता कि उन लोग ने वो सब अपने बचपन में किया है कि नहीं वो सब। सो द बेस्ट कॉमन एग्जांपल फॉर ऑल द मिलेनियल्स आउट हियर, कौन ऐसा था जो खिड़की पे गया है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेके बाद में नीचे पेपर रखा है और उसे बर्न किया है? इफ एनीवन हैज डन दैट, प्लीज शो इट टू मी, योर रिस्पॉन्सेज इन द कमेंट बॉक्स, आई नीड टू सी दैट प्लीज। Yes, yes. Okay, okay. So he's a millennial, I believe that. Uh, okay, okay. Alka, thank you. Yes, yes. So this is what the spontaneously combustion means. Another example I have, which is industrial examples. इसलिए वो industrial example देने से पहले मैं चाहता था कि मैं आप लोग को एक बहुत common सा example दे पाऊँ. So this is why I did that. White or yellow phosphorus, magnesium diamide, कोल और हे। वी हैव हर्ड कोल के खदानों में काफी बार आग लग जाती है। हे मतलब भूसा, सूखी घास, सूखी घास, सूखी घास कभी ऐसे जंगलों में पड़ी रहती है, हमने सुना है काफी बार आग लग गई है, न्यूज में देखा है कि पंजाब के खेतों में आग लग गई है आज। सो वो सब ज्यादा एक्सेसिव धूप के कारण हो जाती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप पेपर को मैग्नीफाइंग ग्लास के सामने एक्सपोज रखोगे तो उसमें आग पकड़ लेगी, राइट? सो दिस इज हाउ इट इज। सो बेसिकली इसका एक लेबल भी आता है, एक्स्ट्रा लेबल आता है जिसे बोलते हैं कीप अवे फ्रॉम हीट। मतलब आपको उसको धूप से बचा के रखना है, आप उसको एक रूफ के अंडर रखोगे। वो सब आगे है लेबल्स जो हम लोग चेक करेंगे। लेट्स नॉट फोकस इट मच ऑन दैट एंड लेट्स प्रोसीड अहेड। सो आप लेबल्स भी यहाँ पे देखोगे, आपको लेबल्स में भी काफी डिफरेंस लगेगा। कोई लेबल अलग है, कोई लेबल अलग है, कोई कलर डिफरेंस है, कोई मिक्स एंड मैच लेबल है, उसका फायर साइंस में अलग अलग लेबल है। नाउ डेंजरस व्हेन वेट मतलब पानी डालोगे तो आग लग जाएगा, इसलिए वो ब्लू कलर में लेबल है। एक सोडियम और कैल्शियम कार्बाइड का एग्जांपल है। ओके, सो सब्सटेंसेस व्हिच बाय इंटरेक्शन विद वाटर आर liable to become spontaneously flammable or to give off flammable gases. Now, class 5 that has two division, 5.1, 5.2, organic peroxides and oxidizing substances. Now यहाँ पे एक देख सकते हो, एक लेबल है जिसपे बर्निंग बॉल का सिंबल है, दूसरा लेबल है जो फायर सिंबल है। So let's see what that symbols means. So substances that yields oxygen readily to stimulate the combustion of other material. Example bleaching powders. ब्लीचिंग पाउडर्स काफी हम लोग के घर पे भी है। एक ऐसी चीज है जो ब्लीचिंग पाउडर शायद किसी के घर पे भी रहेगा, होटल्स में रहता है। So all these things are just common example 5.1, 5.2. This is the 5.1. So नीचे आपको ब्लीचिंग अमोनियम नाइट्रेट का एग्जांपल दिया है। Yes, there was one. Now I remember there was one incident in Lebanon in 2020, somewhere in August 5. जो भी अपने कोविड के यहाँ पे लोग हैं उन्हें शायद पता रहेगा, लेबनान में एक ऐसे ही किधर पोर्ट के इधर अमोनियम नाइट्रेट रखा था एंड दैट बिल्डिंग गॉट ब्लास्टेड। सो वो अमोनियम नाइट्रेट से के कारण हुआ था। सो दिस इज व्हाई इट इज डेंजरस। प्रॉपर्टी डैमेज हुआ, एनवायरनमेंट डैमेज हुआ, अगेन वहां के आजू बाजू जो लोग रहेंगे उन्हें भी काफी प्रॉब्लम हुआ रहेगा। बट या प्रैक्टिकली स्पीकिंग वहां पे कोई ऐसा कैजुअलिटीज नहीं थी ज्यादा, बिकॉज दैट बिल्डिंग वाज एम्प्टी एंड इट वाज जस्ट अ स्टोरेज पार्ट। ओके, सो जस्ट शेयरिंग इट, मेरे को अभी याद आया इसीलिए आई थॉट पता रहेगा किसी को। So let's check next 5.2. Any organic material, liquid or solid that can be ignited readily by external flame that burns. So ये भी एक ऐसा है, जैसे हम लोगों ने 4.2 बताया था कीप अवे फ्रॉम हीट, ये भी एक ऐसा 5.2 ऐसा थिंग है जो आपको हीट से दूर रखना पड़ेगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स एंड बेंजोइल पेरोक्साइड। सो आप अगर इसको हीट के अंदर रखोगे तो दैट विल कैच फ्लेम्स। ओके, so this is the example of this. Now let's cover class 6. Class 6 is 6.1 toxic substances.
सो नाउ व्हाट आई वाज स्पीकिंग इन 2.2 टॉक्सिक गैस, आप इसका लेबल और इसका लेबल देखोगे तो आपको काफी सिमिलर लगेगा, बट द ओनली डिफरेंस इज इसमें 6 लिखा है, उसमें क्लास 2 लिखा रहेगा. सो दैट्स हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द टू ऑफ देम. ओके. नाउ क्लास 2 टॉक्सिक सब्सटेंसेस में अगर मैं डीपली आपको बात करूं, लिक्विड्स और सॉलिड्स जिसमें विच आर डेंजरस इफ इनहेल्ड और swallowed और अब्सॉर्ब थ्रू द स्किन, मतलब टॉक्सिक है, पर एक ह्यूमन के लिए कैसे टॉक्सिक है? या तो आप उसे सॉलो करोगे बाय माउथ, या तो आप उसे स्किन पे अगर लगेगा तो आपको टॉक्सिसिटी फैल जाएगा, या तो आप इनहेल करोगे एज अ गैस, इन अ गैस फॉर्म. So this is how it is a toxic substances. The basic examples if I say pesticide या the rat kill poison. Rat kill poison पे आपको लोगो हर बार दिखेगा एक डेड स्कल का, जो सिमिलर है क्लास 6 के. That is why it is toxic. Okay. I hope till here everyone is cleared, and if you have any questions, you can still put it on the chat box. Any questions till here you all have? To all my dear classmates, if you have any questions, you can still come up, ask. Thank you, Alka. Thank you, Miss Alka. So this is a table where it's a packing group is given, but since it is a very short time I have, मैं ये cover up नहीं कराऊंगा. I'm closing out with the examples over here. Okay. Now, 6.2 infectious substances. Infectious substances. Let's see, किसी को पता है क्या infectious substances क्या होता है? Anyone who have infectious substances, किसी को पता है? कुछ basic idea भी है तो ठीक है. आपको जरूरी नहीं है every time you have to be right. You have to be wrong to become right first. This is what the basic mentality should be. अगर आप wrong नहीं होगे तो आप कभी right भी नहीं हो सकते. तो आपको पहले wrong होना पड़ेगा, तब जाके आप right होगे. Okay. ओके फाइन, किसी को वो रिस्क लेना नहीं है, मैं ये रिस्क ले लेता हूँ. So, 6.2 substances which are known or reasonably expected to contain pathogens and cause disease. कुछ समझ में आया? मुझे भी समझ में नहीं आया. काफी क्या लिखा है मुझे भी नहीं पता चल रहा. लेट्स सी क्या होता है ये. ओके. सो आपको कोविड पता रहेगा, कोविड राइट? अभी कुछ याद आ रहा है? 2 साल पहले कोविड हुआ है. या वायरसेस, रेबीज, HIV, दोज आर ऑल infectious substances. Okay. So viruses such as HIV/AIDS, bacteria, rabies are all part of infectious substances. Okay. You can see the blood also, जो भी blood banks में रखता है वो भी infectious है, इसलिए उसको एक safe vault में रखना चाहिए. Now class 7 रेडियो एक्टिव मटेरियल, आपने काफी जो हॉलीवुड फैंस है उन लोग ने मूवीज में देखा रहेगा ऐसा रेडियो एक्टिव मटेरियल. बड़े बड़े लेबोरेटरीज रहते हैं, एक बड़ा सा फैन का लोगो बना हुआ रहता है, विच इज ओनली फॉर रेडियो एक्टिव मटीरियल क्लास 7. ओके. सो 3 कैटेगरीज होते हैं. कैटेगरी 1 वाइट, जिसका ये वाइट कलर का लेबल है. कैटेगरी 2 येलो, जिसका हाफ येलो हाफ वाइट कलर का लेबल है. और कैटेगरी 3 येलो, जिसका अगेन हाफ येलो हाफ व्हाइट कलर का लेबल है, उसमें रेडियो एक्टिव रोमन नंबर्स में 3 मेंशन किया हुआ है. सो दिस इज हाउ रेडियो एक्टिव मटेरियल इज segregated. Now class 8 corrosive material. Corrosive material is anything that can किसने वो मूवी देखा है छपाक? छपाक मूवी से अगर आप वाकिफ हो तो उसमें ऐसे ही कुछ केमिकल्स यूज किए हैं फॉर दैट एसिड अटैक विच इज वेरी बैड. सो आपको पता है कि अगर वो आपके स्किन पे गिरेगा तो बर्न्स कॉज होगे, डैमेज कॉज होगे. इनफैक्ट स्किन ही नहीं, अगर आपके वो किसी डेस्क पे या ऑफिस डेस्क पे या अगर वो मेटल्स पे भी गिरेगा तो वो बर्न्स कॉज कर सकता है. और ऐसे बर्न्स जो आप उसको वापस बना भी नहीं सकते. वो स्टेट एक होल क्रिएट कर देगा. जैसे घर पे हमारे पास थर्मामीटर है. थर्मामीटर में वी हैव हर्ड सिंस दैट मर्क्यूरी होता है, ऑफ कोर्स मर्क्यूरी होता है, बट अभी उन लोग ने वो मर्क्यूरी को रिप्लेस कर दिया विद अ सिमिलर केमिकल जो वैसे ही एक्सपांड होता है सेम लाइक मर्क्यूरी. ओके. सो क्लास 8 के जो एग्जांपल्स है, इट इज बैटरी एसिड्स, मर्क्यूरी एंड सल्फ्यूरिक एसिड्स.
उसका लेबल है, आप देख सकते हो। वो एसिड अगर मेटल पे गिर रहा है, मेटल भी बर्न हो रहा है, आपके हाथ पे गिर रहा है, वो हाथ भी आपका बर्न हो जाएगा। सो दिस इज कोरोसिव क्लास 8, कोरोसिव मटेरियल। Class 9 miscellaneous dangerous goods, any substance which represent a danger during air transport that is not covered by other classes। ये कुछ ऐसे क्लासेस है जिन्हें छोड़ दिया है, जो किधर क्लास 1 से लेके क्लास 7 तक किधर फिट नहीं हो पाए, सब इधर क्लास 9 में आ चुके हैं। दैट इज मिसलेनियस डेंजरस गुड्स। एग्जांपल, लिथियम बैटरीज। आप अगर लैपटॉप मंगाते हो, लैपटॉप एक कार्डबोर्ड के बॉक्स में आता है, जिसपे एक लिथियम बैटरी का लेबल होता है, जो लेबल अभी आप आगे देखोगे। सो ऐसा जो नीचे आप एक लेबल है देख रहे हो, बैटरीज है, बर्न हो रही है, डायगोनल हैचिंग्स है ब्लैक एंड व्हाइट कलर की, उसके हाफ नीचे लिथियम बैटरी है। सो टू कैटेगरीज है इसमें, एक है जो सिर्फ क्लास 9 के लिए यूज होता है, एंड सेकंड इज ओनली फॉर लिथियम बैटरीज। ओके, लेट मी सी द चैट बॉक्स इफ एनीवन हैज said or asked anything which can harm circulate infections. Okay, for that was for class 6. Fungus, okay, infections, but no, fungus is very different. Tiwari, Miss Roshni Tiwari, your answer was Mercury, Mr. Jay. Yes, that was for class 8. So I believe for class 9 I'm very fresh and no questions here during air transport that is not covered. So ये class 9 में आएगा। RAFs भी class 9 का एक substance है। Okay, let's see. So with this we have completed the main part of dangerous goods, that is classes। एक अभी जो यहाँ पे मैं काफी थोड़ा फास्ट होने वाला हूँ, बिकॉज अभी हम लोग के पास थोड़ा लेस टाइमिंग है, एंड वी हैव टू कवर अ लॉट थिंग्स स्टिल। सो इफ यू ऑल हैव एनी क्वेश्चंस, वहां पे भी आप मेरे को माइक पे आ सकते हो, इफ मिस चारुलता अलाउज अस, और यू कैन पुट इट ऑन द चैट बॉक्स Definitely. फर्दर। ओके, Yes, learners, you थैंक can यू। be as सो interactive एक as एक्सरसाइज है possible. Okay. डेंजरस गुड्स की, जो आप, यस। Yes, सो please यहाँ go पे ahead. एक एक्सरसाइज है, आई जस्ट मेंशन दैट। आप एक ये एक्सरसाइज का फट से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो स्क्रीनशॉट ले लो, आई डोंट माइंड। Changing the slide in 5, 4, 3, 2, 1, 0। ओ, नीचे भी क्वेश्चंस थे, सो आप स्क्रीनशॉट ले लो जिसे भी लेना है। आई एम चेंजिंग द स्लाइड नाउ। नो आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे एक ब्लू टेबल है जो आइडेंटिफिकेशन बता दी है, जहाँ पे 3000 लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स एंड सब्सटेंसेस दिया हुआ है, जिसमें यूएन नंबर और आईडी नंबर 317 करके 4 डिजिट के नंबर्स है। सो वो यूएन नंबर है, और अगर कोई भी नंबर आईडी, जैसे लाइक देयर आर टू पार्ट्स ओवर हियर, एक यूएन नंबर होता है और एक आईडी नंबर होता है। सो जो भी 8000 के नीचे रहता है वो यूएन नंबर में आता है, और जो भी केमिकल या सब्सटेंस 8000 के ऊपर जाता है, दैट कम्स अंडर आईडी नंबर। आईडी इज आइडेंटिफिकेशन नंबर, एंड यूएन इज डिराइव्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस। ओके, सो ये काफी बड़ी लिस्ट है ऑफ 3000 आर्टिकल्स, केमिकल्स एंड आर्टिकल्स की। सो इट्स लाइक अ डिक्शनरी। आप जैसे डिक्शनरी ओपन करते हो, A to Z अल्फाबेट में आपको कुछ सर्च करना रहता है, कोई भी वर्ड चाहिए, वैसे ही यहाँ पे सारे केमिकल्स दिए हैं। केमिकल्स के क्वांटिटी लिमिटेशंस दिए हैं कि आप पैसेंजर एयरक्राफ्ट में कितना कैरी कर सकते हो, उसके रेगुलेशंस क्या होंगे। आप कार्गो एयरक्राफ्ट में कितना कैरी कर सकते हो, उसके लिमिटेशंस कितने होंगे, या पैकिंग रिक्वायरमेंट्स जो भी है वो सब कैसा होगा, और वो कौन से सेक्शन के अंडर दिया है। 4.2 सेक्शन के अंडर आपको दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ डेंजरस गुड सब्सटेंसेस। ओके, सो आई एम कमिंग टू पैकिंग नाउ। पैकिंग, पैकिंग इज अ वेरी क्रूशियल फॉर्म। आपने अब जो भी अभी अगर इधर सेमेस्टर 3 में है, लाइक माय अदर क्लासमेट्स, आई एम इन सेमेस्टर 3। सो सेमेस्टर 3 में एक हम लोग को सब्जेक्ट है पैकिंग का, पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स का। सो वहां पे पैकेजिंग आपको बताया है। क्या आपको कुछ पैकेजिंग के बारे में पता है? एनीथिंग, कैन एनीवन टेल मी इन द चैट बॉक्स, आप पैकेजिंग क्यों यूज करते हो, एंड पैकेजिंग क्या काम आता है? Okay, just before anyone proceeds ahead, I was having a question from Miss Poonam over here. What is life rafts? Life rafts जो बोट जैसे टाइटैनिक डूब रही थी, तो वहां पे लाइफ राफ्ट से
दिया था टू सेव पीपल। वो लाइफ सेविंग बोट्स आप बोल सकते हो, लाइफ राफ्ट। सो व्हाट हैपेंस ओवर देयर इन लाइफ राफ्ट इज, वो आप ऐसा एक नॉब रहता है, वो प्रेस करोगे तो वो फट करके ऐसा एयर भर जाएगा उसमें, एंड आप उसको पानी में उतार सकते हो। सो वो है लाइफ राफ्ट। आई होप योर क्वेश्चन इज क्लियर। फॉर सेफ्टी मटेरियल, ओके मिस्टर सत्य, फॉर सेफ्टी मटेरियल, ओके, आई विल टेक दिस अहेड नाउ। काफी चीजों के लिए काम आता है कि लगता है किसी ने डेफिनेशन बराबर पढ़ा नहीं है इन सेमेस्टर 3। उसको प्रमोशंस के लिए यूज कर सकते हो, फॉर ब्रांड एडवर्टाइजिंग आप यूज कर सकते हो, फॉर ट्रांसपोर्टेशन आप यूज करते हो टू कीप द मटेरियल सेफ इन दैट। सो ऑल दिस एंड मेनी मोर, सेफ्टी पर्पस, एफिशिएंसी पर्पसेस, इफेक्टिव पर्पसेस, इफेक्टिव ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट पर्पसेस, ये सब काफी सारी चीजें कॉम्बिनेशन में भी यूज हो सकती है। सो ये सब बेसिक एग्जांपल्स ऑफ व्हाई यू यूज अ पैकेजिंग। पैकेजिंग शुड बी स्ट्रिंजेंट। आपका पैकिंग ही है जो आपके ब्रांड के बारे में स्पीक करेगा, आपका पैकिंग ही है जो आपके फर्दर थिंग्स के बारे में बात करेगा, ट्रांसपोर्ट में भी काम आएगा, फॉर सेफ्टी। ओके, अब काफी सारे पैकेजिंग्स है यहाँ पे, हम लोग कवर करेंगे पैकेजिंग्स आगे। ये ड्रम्स है, डिफरेंट टाइप्स के ड्रम्स है, स्टील ड्रम्स है, कार्डबोर्ड ड्रम्स है, जेरी कैन है नीचे, प्लास्टिक जेरी कैन है, देन स्टील जेरी कैन है। सो ये सब आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजिंग्स यहाँ पे दिया है। ओके, नाउ पैकेजिंग, टाइप ऑफ पैकेजिंग, व्हाट इज टाइप ऑफ पैकेजिंग? अच्छा, इन अगेन आई एम कमिंग बैक टू दिस और एमआईटी पैकेजिंग का सब्जेक्ट। यहाँ पे सिंगल पैकेजिंग दिया है, वहां पे सिंगल पैकेजिंग को कुछ दूसरे वर्ड से डिराइव किया हुआ है। इफ एनीवन इज अवेयर ऑफ इट, यू ऑल कैन पुट इट ऑन द चैट बॉक्स टिल आई एम हैविंग माय वाटर ब्रेक फॉर 2 seconds mainly, to protect the product. Mr. Aman, thank you. Thank you for being a wonderful audience. You all are interacting very well. I see you all have done your सुबह का breakfast very well, and this is very good to see. You all are very enthusiastic more than me. आप लोग की एनर्जी मेरे में ट्रांसफर हो रही है, so good. Okay, types of packing. What are the types of packing? Single packaging, combination packaging, and composite packing. So, in as I was speaking about the packaging in our packaging subject of MIT HD सेमेस्टर 3, वहां पे दिया हुआ है आपको सिंगल पैकेजिंग के बदले आपको दिया है प्राइमरी पैकिंग। सेकंड आपको दिया है इस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी पैकिंग। सो यहाँ पे ऐसे ही कुछ पैकेजिंग है, पर ये डीजी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सिंगल पैकिंग मतलब क्या? बिस्लरी का बॉटल है, ढक्कन लगा हुआ है, जैसे मेरे हाथ में ये बॉटल है यहाँ पे, अगर मैं इसको उल्टा करूंगा पानी गिरेगा नहीं, तो ये सिंगल पैकेजिंग में भी जाएगा। राइट, दिस इज व्हाट, इसे में पानी नहीं गिर रहा है अभी, सो दिस इज व्हाट सिंगल पैकिंग इज। अभी मुझे कुछ अगर ऐसी 10 बॉटल कैरी करनी है हॉल से लेके रूम में, तो मैं क्या करूंगा, 10 बॉटल के लिए बॉक्स लूंगा, बॉक्स को मैं बॉक्स के अंदर मैं 10 बॉटल्स डाल दूंगा। अब मेरे लिए इजी हो गया कैरी करने के लिए, सो वो कॉम्बिनेशन पैकिंग में आ जाएगा। कॉम्पोजिट पैकिंग, द बेस्ट एग्जांपल, 2 एग्जांपल्स आई हैव। आप लोग के घर पे थर्मस बॉटल्स है? Thermos bottles, anyone know what thermos bottles are? Or you all already know, but you are too lazy to type in the chat box. Yes, perfect, Mr. Jay. Thank you so much. Thank you. I really appreciate your quick response. Everyone, okay. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Miss Roshni. Thank you. Now, थर्मस। ना व्हाट इज थर्मस? कंपोजिट पैकिंग के लिए मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया? थर्मस, थर्मस अगर आप देखोगे, इनर पैकेजिंग जो है वो अलग है, बाहर का पैकेजिंग जो है वो अलग मटेरियल का है। बाहर का शायद प्लास्टिक भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, पर अंदर जो है वो एक थोड़ा अलग मटेरियल से बना हुआ है, जिसके कारण आपका जो पानी जिस टेम्परेचर में आप पुट करोगे वही टेम्परेचर में 1-2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद भी रहेगा। दिस इज व्हाट कॉम्पोजिट पैकिंग इज, एंड इट इज इंटीग्रेटेड। आप वो अंदर के मटेरियल को निकाल नहीं सकते। दिस इज व्हाट composite packing means. For carrying hot water, steel, perfect, perfect. Thank you so much. This is the most life up till met, and I appreciate मार्किंग एंड लेबलिंग। सो अभी हम लोगों ने पैकिंग, हम लोगों ने काफी कुछ कवर अप कर लिया। अभी मार्किंग एंड लेबलिंग पे आते हैं। 2 टाइप्स ऑफ मार्केजिंग,
packing markings we have, package use markings and package type markings. पैकेज यूज मार्किंग्स में क्या क्या है? प्रॉपर शिपिंग नेम है, यूएन आईडी नंबर है, नेम एंड एड्रेस है, मतलब बेसिक डिटेल्स। आपके पास अगर कोई लेटर आता है, वो लेटर पे आपके पास क्या क्या रहेगा? जैसे कुरियर से एक लेटर आया है, तो आपका बेसिक डिटेल्स रहेगा, आपका फोन नंबर रहेगा, तो आपके फोन नंबर के बदले यहाँ पे समझ लो यूएन और आईडी नंबर है उस केमिकल का या उस आर्टिकल का। ओके, वैसी नेम एंड एड्रेस ऑफ शिपर एंड कंसाइनी, कि कहाँ से जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है। प्रॉपर शिपिंग नेम मतलब आपका नाम, जैसे आपका नाम लिखूंगा मैं कुरियर पे, राइट, कि XYZ नेम एंड उसका फोन नंबर या उसका फ्लैट नंबर लिखूंगा मैं। वैसी नेम एंड एड्रेस एंड शिपर ऑफ कंसाइनी। वरना प्रॉपर एड्रेस पे नहीं पहुंचेगा, किसी गलत जगह पे पहुंच जाएगा, तो फिर आपको भी नुकसान होगा, मुझे भी नुकसान होगा, सबको नुकसान होगा, राइट। पैकेज टाइप मार्किंग मतलब क्या होता है? एक तो होता है यूएन स्पेसिफिकेशन पैकेज टेस्टिंग एंड सर्टिफाइड पैकेजेस, जो कुछ ऐसा दिखेगा, मार्किंग सर्टिफाइड रहेगा। और एक होता है लिमिटेड क्वांटिटी पैकेजेस। अभी ये दोनों पैकेजेस में डिफरेंस क्या है जिसका मार्किंग ऐसा रहेगा? डिफरेंस क्या है? टेस्टिंग का डिफरेंस है, टेस्टेड बट नॉट सर्टिफाइड पैकेजेस। To all the guys, definitely I'm not saying that girls don't ride bikes. Girls also ride bikes, but majorly okay, आप बोथ दोनों आंसर दे सकते हो, मेल्स एंड फीमेल्स बोथ, जो बाइक चलाते हैं। आप लोग हेलमेट्स यूज करते हो, राइट? हेलमेट्स यूज करते रहोगे यहाँ पे सभी लोग। यस यस यस। सो आप लोग को आइडिया रहेगा कि हेलमेट्स में दो कैटेगरीज आती है। एक तो आता है आपका आईएसओ सर्टिफाइड। आईएसओ सर्टिफाइड एक हेलमेट आता है। दूसरा आपको आता है आईएसओ। यस मिस्टर आकाश, मिस्टर मिस रोशनी, थैंक यू। आईएसओ सर्टिफाइड, राइट, एक नंबर रहता है उसमें। वो आईएसओ सर्टिफाइड क्या बोलता है? आईएसओ सर्टिफाइड ये बोलता है कि वो सेफ्टी स्टैंडर्ड से मेजर्ड है, उसके सेफ्टी प्रोटोकॉल्स प्रॉपर है, उसका टेस्टिंग वगैरह हो चुका है। तो वैसे यूएन पैकेजेस है जिसका टेस्टेड हुआ है, उसको सर्टिफाइड भी दिया है। वैसे ही एक दूसरे आपको हेलमेट्स आते हैं जो नो नेम नो शेम रहते हैं। आपको रास्ते पे हाईवेज पे 200 रुपए का मिल जाएगा, 100 रुपए का मिल जाएगा, 50 रुपए का मिल जाएगा। वो हेलमेट है, बराबर है, पर उसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता। अगर हाइट से कुछ गिरेगा तो कितना इम्पैक्ट करेगा? दिस इज, आई लव द आंसर मिस्टर रोहित, थैंक यू सो मच। अगर हाइट से कितना, यस, नॉट सर्टिफाइड, या करेक्ट करेक्ट। लिमिटेड क्वांटिटी पैकेजेस, टेस्टेड बट नॉट सर्टिफाइड पैकेजेस इज द लिमिटेड क्वांटिटी पैकेजेस। इसके कुछ लिमिटेशंस रहते हैं, जैसे जी 30 kg जाएगा लोकल मार्केट। ओके, थैंक यू मिस्टर आनंद, थैंक यू। आई होप आई एम एबल टू रिस्पॉन्ड टू एवरीवन। नाउ लिमिटेड क्वांटिटी पैकेजेस, टेस्टेड बट नॉट सर्टिफाइड पैकेजेस। ओके, सो यहाँ पे आई वुडंट बी एबल टू स्टॉप मच, बट मैं सिर्फ एक आपको सर्टिफाइड पैकेजेस बता रहा हूँ, कैसे मार्किंग्स होने चाहिए, कैसे लेबलिंग्स होने चाहिए। वो लिमिटेड का था, ये यूएन सर्टिफाइड का होगा। प्रॉपर शिपिंग नेम, यूएन नंबर इधर दिया है 2788 से 2789, जो 4 डिजिट्स का रहेगा, एज आई सेड। नेम एंड शिपर्स नेम। लेबल्स, लेट्स सी व्हाट आर द हजार्ड लेबल्स। डेंजरस गुड्स हजार्ड लेबल, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9। Okay. Now, handling labels. हैंडलिंग लेबल, मटेरियल, मैग्नेटाइज मटेरियल। अगर आपके एयरक्राफ्ट में कुछ भी मैग्नेटाइज मटेरियल जा रहा है। मैग्नेटाइज मटेरियल क्यों डेंजरस गुड्स है? आपने अगर देखा है इलेक्ट्रॉनिक्स के पहले, मैंने तो किया है ये बहुत, आप लोग का पता नहीं, शायद आप लोग ने भी किया है। एज अगेन कमिंग बैक टू द मिलेनियल्स पॉइंट, मैग्नेट रहता था मेरे पास, मैं जाता था टीवी पे, टीवी के ऊपर जाके मैंने बहुत बार डिस्प्ले पे ऐसा मैग्नेट घुमाया है, एंड जिससे की कारण मेरा टीवी का डिस्प्ले खराब हो गया था, या तो फिर पर्पल टर्न कर दिया था। कमेंट विथ एवरीवन इफ यू अग्री विथ मी, आप लोग ने किया है या नहीं किया है ऐसा? ओके, सो वो मैग्नेट अगर आप टीवी पे लेके जाओगे तो वो खराब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, राइट। सो वैसे ही एयरक्राफ्ट के ऊपर, एयरक्राफ्ट में जो होता है कंपेस होता है। यहाँ पे आप कंपेस देख रहे हो, वो कंपेस मैग्नेटाइज्ड मटेरियल कंपेस को अफेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाई मैग्नेटाइज्ड मटेरियल इज डेंजर ऑन एयरक्राफ्ट एज वेल, बट विद प्रॉपर प्रिकॉशन यू कैरी इट। कार्गो एयरक्राफ्ट लेबल ओनली, मतलब दो टाइप्स के एयरक्राफ्ट होते हैं, पैसेंजर और एक कार्गो। सो अगर आप पैसेंजर पे कैरी करोगे तो उस पे कार्गो एयरक्राफ्ट का लेबल नहीं लगेगा। क्रायोजेनिक लिक्विड लेबल है, कीप अवे फ्रॉम हीट लेबल है, जो मैंने आपको बोला था 4.2 एंड 5.2, 4.1 एंड 5.2 के लिए। रेडियो एक्टिव मटेरियल के लिए रेडियो एक्टिव मटेरियल का पैकेज लेबल है। डेंजरस गुड्स इन एक्सेप्टेड क्वांटिटी, मतलब जो इंजेक्शन में जितना एमएल जाता है,
वो आपको एक्सेप्टेड क्वांटिटी पैकेजेस में जाएगा, उसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं बनता। Lithium battery, I'm not going deep into lithium battery because it is a very big concept, and doing this in 55 minutes of time is very tough. So we'll cover up that maybe next or something. Let's see. पैकेज ओरिएंटेशन लेबल मतलब अगर आप बिस्लरी का बॉटल कैरी कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया 10 एक पैकेज है, उसके अंदर मैंने 10 बॉटल डाल दी बिस्लरी की। अभी बाहर वाले को कैसे पता चलेगा उसमें बिस्लरी की बॉटल है? उसपे मैं ये लेबल लगाऊंगा सो दैट ही नोज, वो अवेयर रहे। एक पैकेज ओरिएंटेशन का लेबल लगाऊंगा, क्यों? उसको पता चले बॉक्स को सीधा रखना है, अपराइट पोजीशन में रखना है। एनवायरमेंटल हजार्डस सब्सटेंस मार्क, जो जनरली कुछ दो केमिकल होते हैं उसके लिए ही रहता है, 3077 यूएन नंबर और 3082 के लिए रहता है, जिसमें डेड ट्री और डेड फिश का लोगो बना था। लेबल इट्स, गौर से देखोगे लेबल खुद बात कर रहा है। तो पैकेजिंग भी आप जो कर रहे हो, पैकेजिंग भी ऐसे ही बात करना चाहिए कि मैंने क्या पैकेज दिया है, मैंने क्या पैकेज यूज किया है। ओके, योर लेबल योर पैकेजिंग शुड बी सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट। नाउ अगेन कंप्लीटली मार्क्ड एंड लेबल्ड पैकेज, ये एक यूएन स्टैंडर्ड बॉक्स है जो टेस्टेड है। कीप अपराइट के दो लेबल्स लगते हैं, कोई कोई चारों बाजू लगा देता है, विच इज नॉट नीडेड, बट या आप दो ऑपोजिट साइड पे भी लेबल दिखाओगे तो वो काफी सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट होता है। If you have any questions, if you have any questions, please let me know your questions. Batch number, I didn't got your question. Batch number on label. I didn't get what your question is. You need to elaborate, Mr. Anand, a bit. If you want to come on mic, do you want to come up on mic and ask the question? You can. You are free to ask. Ms. Charulata, can you come on mic and speak? Definitely, I've allowed him to unmute himself. Okay. However, it Mr. depends Anand, on can you him come now. on mic and speak? Yes. Okay, no problem. So I'm proceeding ahead. If he still has any question, I'm allowing him to ask further. So it is a exercise. मैं आपको चाहूंगा, मैं exercise discuss नहीं कर पाऊंगा. How much time do we have left, Miss Charulata? Can you Yeah, mention me? we can only stretch for 5 more minutes, I guess. And yeah. 5 minutes. Okay, wonderful. That's wonderful. So my exercise, I'll ask everyone to just take a screenshot of it, because what I have further is much more important than what we covered previously. Okay. So I'll try to cover up in next 5 minutes what we have. It's the most important part. Now, exercise का आप लोग सिर्फ एक screenshot ले लो, and that will be done. You can check the exercise anytime later. You'll have the answers now. I hope everyone has taken the screenshot. I'm proceeding ahead. Documentation. This is just a documentation part. यहाँ पे मैं आपको fill up करना नहीं सिखाऊंगा, which is very another session. It takes a 3 hour session for me to cover this particular part, where I make everyone understand that what particular document this is and कैसे उसके columns fill किए जाते हैं। But two types के होते हैं। एक होता है मैनुअल, जहाँ पे आप जेरोक्स लेके प्रिंट आउट लेके उसको फिल करोगे पेन से, और होता है एक होता है कंप्यूटराइज, जो कंप्यूटर में रहता है, एंड आप उस पे सिर्फ जैसे वर्ड फाइल में आप एंटर कर रहे हो डिटेल्स, वैसे आप सेम वे में डिटेल एंटर करोगे। इसके बिना डेंजरस गुड्स बाय एयर फ्लाई नहीं हो सकते। ये सब एक ऑल पैक्ड इन वन का एग्जांपल है, मतलब इसमें मैंने एक मल्टीपल क्लासेस ऑफ डेंजरस गुड्स डाल दिया, ऑफ कोर्स कंपैटिबिलिटी चेक करके। ओवर पैक मतलब 15-20 बॉक्सेस एक साथ थे, वेयर हाउस वाले को इजी करने के लिए मैंने फोकलिफ्ट पे मैंने एक क्रेट पे रख दिया। क्रेट पे रखने के बाद उसको एक श्रिंक रैप करूंगा मैं। शिंक रैप करके, ये मेरा लाइव हैंडल बॉक्स है ओवर पैक का, जो मैंने आप लोग के लिए एग्जांपल लिया है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू सी दैट जो भी अंदर के लेबल्स थे, व्हाट वी हैव डन इज जस्ट रिप्रोड्यूस द लेबल्स आउटसाइड एंड रिटन ओवर पैक ऑन इट, सो दैट सामने वाले को पता चले इसमें मल्टीपल बॉक्सेस हो सकते हैं एंड डिफरेंट शिपर्स के। इट इज जस्ट फॉर हैंडिंग पर्पस। मैंने इसको 1 यूनिट बनाया है।
वन यूनिट मतलब एक क्रेट पे रख के श्रिंक रैप कर दिया है। सो ये एयरक्राफ्ट में भी एज अ वन यूनिट जा सकता है, जिधर भी जा रहा है ओवर देयर इट कैन break and we can break it and send it to the respective consignees. Any questions? People are open up to ask me questions. क्लास 9, एक क्लास 9 में सेग्रीगेशन टेबल होता है जिसमें बताते हैं क्लास 3 क्लास 9 के साथ जा सकता है कि नहीं। जैसे मैंने क्लास 1 में कंपैटिबिलिटी की बात की थी ही, जैसे घर पे दो भाई भाई लोग भाई रहते हैं, कोई एक संत एकदम संत आदमी रहता है और दूसरा होता है जो एकदम झगड़ालू रहता है। सो वैसे ही कुछ केमिकल्स होते हैं जो कभी भी कुछ भी कैसे भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो एक केमिकल दूसरे केमिकल के साथ रिएक्ट करेगा कि नहीं वो हम नहीं जानते, वो डीजी बुक जानता है जिसमें उसने कंपैटिबिलिटी रेशियो दिया है आपको, कौन सा केमिकल किसके साथ जाएगा, कैसे रिएक्ट करेगा या कब रिएक्ट करेगा, या आपको दोनों के बीच में कितना अंतर रखना चाहिए। जैसे अगर मैं फूड आइटम्स भेज रहा हूँ, फूड आइटम्स के साथ मैं इन्फेक्शियस सब्सटेंसेस नहीं भेज सकता क्योंकि वो इन्फेक्शियस है। या तो फिर अगर मैं इन्फेक्शियस सब्सटेंस भेज रहा हूँ एंड उसके बाजू में मैंने एनिमल्स रखा, एनिमल्स आर वेरी प्रोन टू स्मेल्स, एकदम सेंसिटिव स्मेल्स भी उन लोग को एकदम इरिटेट करेगा नोज में। सो दैट टाइम यू कैंट कीप एनिमल्स एंड इन्फेक्शियस सब्सटेंसेस टुगेदर। ओके। Dry ice produces carbon dioxide. I believe everyone is aware dry ice produces carbon dioxide. So अगर aircraft पे animals है और dry ice है, I believe it's a no. It's a clear no. It's a no. कार्गो एयरक्राफ्ट का लेबल है तो आप सिर्फ कार्गो एयरक्राफ्ट में ही डाल सकते हो, पैसेंजर में नहीं डाल सकते। नाउ ओवर हियर व्हाट्स रॉन्ग? ड्रम्स है, बॉक्सेस है, यहाँ पे ओवर स्टैकिंग का केस है ये। इट्स अ केस ऑफ ओवर स्टैकिंग। सो आई बिलीव ऐसे नहीं करेंगे तो बेटर है। क्या करना चाहिए, जो हेवी बॉक्सेस है उसको नीचे रखो, ड्रम्स को उसके ऊपर रखो। अगर आप ड्रम्स को ऐसे रखोगे तो ड्रम्स में क्रैक आ सकता है, जो लिक्विड है वो कंप्रेस होने के कारण लीक हो सकता है। ओके। डू नॉट ओवरस्टैक डीजीआर विथ हेवी कार्गो। आप देख सकते हो यहाँ पे ड्रम्स का कैसे कंप्रेस हो गए हैं एंड इट इज टोटली डैमेज। नाउ इधर द शिपर हैज टू रिप्लेस द ड्रम्स और इधर सेंड सम न्यू। नाउ मार्किंग्स एंड लेबलिंग्स है, या आपको जो मार्किंग्स बताया था स्पेसिफिक मार्किंग्स, इसने पेन से लिखा है विच इज नॉट अलाउड। इट शुड बी एम्बॉस्ड। एम्बॉस कहां से होना चाहिए, जहां से पैकेज आ रहा है वहां से वो एम्बॉस होके आना चाहिए, दैट इज प्रिंटेड। ओके। सो अगेन ये सब हाथ से लिखा हुआ है, काफी सारी चीजें जो इनकरेक्ट है एज पर द डीजी मैनुअल। एक डीजी मैनुअल होता है, हर साल डीजी मैनुअल चेंज होता है, हम लोग वही रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। उसके हिसाब से दिस एवरीथिंग रिटन इज रॉन्ग एंड स्पेशली इट हैज यूज द पैकिंग इंस्ट्रक्शन ऑल्सो वेरी रॉन्ग। फ्लेमेबल वेमेबल ऐसा कोई लेबल नहीं है, वी जस्ट कवर्ड इट अप। 4.1 का लेबल was very different. Yes. 4.1 said flammable solid, right? If you all remember flammable solid, it was flammable solid. So it is incorrect label. What's the problem here? Now, I don't see any problem. If there is a normal eye seeing, they will say it has no problem over here. But being a loader, being a person working at the ground level, ground zero, what I call, overlap किया लेबल को क्लियरली। मिसकंसेप्शन, व्हाई हैव यू ओवरलैप? आपने लेबल को ओवरलैप किया सेलो टेप से ग्राउंड। लेबल का एरिया जो रहता है वो परफेक्टली क्लियर होना चाहिए, नथिंग शुड कवर अप। ओके। व्हाट्स द प्रॉब्लम हियर? नो। ओके। अगेन एवरीथिंग माइट लुक वेरी कंप्लीटली गुड नॉर्मल। अगेन आई विल से लेबल्स को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मल्टीपल चीजें हैं तो आप उसको मल्टीपल रखो। Yes. मल्टीपल कार्गो है और सेम ये तो आप एक ही लेबल यूज करो एंड जस्ट 2 minutes मोर एंड वील बी कंप्लीटिंग ऑल दिस। ये आई गेस मोर 2 slides आर रिमेनिंग एंड वील बी डन। Okay. डू वी हैव Okay. टाइम और यू वांट मी टू स्टॉप? 2 minutes is ओके, थैंक यू doable. सो मच। We have already stretched. Yeah. यस, 2 minutes वील बी I कंप्लीटेड, hope टू it मिनट्स is वील बी कंप्लीटेड। doable, right, learners? इट इज डूएबल। नाउ एवरीथिंग इज जस्ट प्रैक्टिकल, वट एवर इट इज। ये सब प्रैक्टिकल इमेजेस मेरे को बताना था दैट ये सब रॉन्ग है, सो डोंट डू दैट।
एनीवन इन लॉजिस्टिक उनके लिए भी ये काफी यूजफुल रहेगा। यहाँ पे भी उसने लेबल के ऊपर रिप्रोड्यूस किया है। आप टॉक्सिक लेबल देख सकते हो, वहां पे पेन से लिखा हुआ है। नाउ अगेन यहाँ पे जो है, आप लेबल के ऊपर एक अनदर लेबल देख सकते हो। प्लीज डोंट डू दैट। लेबल को एक अलग जोन में रहने दो। लेबल के ऊपर कुछ भी ओवरलैप मत करो। दिस इज व्हाट आई विल से। अवॉइड एक्सीडेंट्स इफ यू फॉलो प्रोसीजर्स, आपके एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, सेफ्टी बरकरार रहेगी। रिड्यूस अननेसेसरी कॉस्ट एंड फाइन्स इम्पोज्ड बाय द अथॉरिटीज। ये सब लेबल्स हैं जो, ठीक है, लेबल्स हम लोगों ने कवर कर लिए है। रिपोर्टिंग हम लोग को डीजीसीए को करना है। दिस इज व्हाट द मेन पार्ट इज। Retention of records are for 3 months, done by the shipper or the airlines. Main part, never compromise on safety. Never ever compromise on safety. Safety is mandatory. PPE kit से लेके सब कुछ, everything should be proper. I hope everything is cleared, and if anyone has questions, please be my wonderful audience and support me for the questions if you all have any. And thank you, MIT, for this wonderful opportunity. So thank you so much, Rachit. And learners, if at all you have any questions from your classmate Rachit, please let him know. Okay. In quickly 1 minute, he will be answering all your queries. And one thing I want to say definitely that thank you so much everyone for being very interactive. Right. I think this encouraged Rachit as well. This is what encouraged us for, Of having such course, definitely. sessions. Absolutely. I can see the energy in the chat box. I can see how Rachit was also feeling energized by Thank your you for responses. the needful session. Okay. Of Yes. course, I am energized by the responses. I generally have many water breaks. Over here, you saw I took water breaks in, I guess, half an hour later. So my energy was coming from my participants, my classmates. Amazing. See, Thanks, that Mr. is the Rachit, for a spirit very we good want. session. Thank you. Thank you, Mr. Krishna, for being a wonderful classmate to me and supporting me by coming here, sparing your Saturday 2 hours. Amazing. Okay, so thank you Mr. so much, Sawant, Rachit. thank you. Yes. Any questions? Anybody? Or should I move ahead? Also, I've shared the link for the attendance. Kindly mark your attendance right away. Okay. And on that note, thank you so much, Rachit, for being such an amazing Okay. speaker for today's session, for sharing insightful information. Right. I'm sure your classmates have a better understanding of what dangerous goods are now and why safety regulations are so Someone important. has, Yeah. Mr. Sawant has asked, can we get your LinkedIn profile for future reference? Uh, uh, can you please answer, Ms. Charulata, for this? Definitely. Please put your LinkedIn profile in the chat box. You can connect with Mr. Rachit Okay. via LinkedIn for sure, right? Uh, We just encourage search everyone Rachit because this Mittal. session is exclusively for, you know, gaining, sharing knowledge and wisdom, additionally for networking as well. So you can always connect with each other via LinkedIn. Very specific. Okay. Okay. So yeah, Okay. that is there. Then other than that, Do you yeah. You want me to so share do your you have my profile? LinkedIn profile reference? If you can add it on my behalf, if I asked you. Definitely. Yes, if it's possible. Yeah, give me a moment, please. Yes. Mr. Krishna. Okay. Thank you, Mr. Krishna. I need a chat box. Where's the chat box? In the Okay. meanwhile, if at all anybody has any questions, please connect with Rachit directly. You can always raise a hand to unmute. Okay. And we will unmute you right away. Okay.
But what I would like, I have something to say. Like it just struck me. So to all my dear colleagues and classmates, teammates, I would say one thing. So this idea, how this idea came into my head. Uh, so there was this project there was this project which we have to submit. Okay, and I thought बहुत सारी चीजें is good since I am very well averse of dangerous goods. मैंने यही प्रोजेक्ट थी बट मैंने एज अ प्रोजेक्ट डेंजरस गुड का ही सबमिट किया था. So since then it was up to my mind that if I can somehow connect with MIT SD to share my knowledge what I have idea to put it on e-library. And जैसे ही मैंने e-library पे डाला till that time I got response, a very quick response, and everything just happened quickly, and we selected a date. And I guess एक date मेरे को मिल रहा था was 7th of March and another date was Hmm. 28th of March. Yes. And let's Yes. spread what I have, and it will be a wonderful part over this. And to all the MIT SD team who supported me and जिसके कारण मैं यहाँ पे हूँ, आप लोगों को knowledge share कर रहा हूँ. So I'm really grateful about this. Thank you. Thank you so much, Rachit. Rachit, I can say is the definition of kal kare so aaj kare so ab. And we can see the progress, right? Exactly. We can say how helpful it has been for us, his personality, his attitude, and we definitely cherish that. We want that for everyone. That is how we grow together, correct? Yes. So, on that note, Exactly. so it was a very That's why we special. just any small idea if you'll have, go ahead. Yes. So it was a very special and interesting session with a very interactive audience with us, right? Your classmates for sure. And in this real world process, compliances Absolutely. requirement and the role of professionals like you play in maintaining a very important role, right? So on behalf of Team MIT SD and Synergy Right. Sphere, I would like to sincerely thank you for taking the Correct. time to share your knowledge and experience with your classmates today. And I hope that all the learners Absolutely. who joined today with us are equally thankful. And thank you so much for your participation, dear learners. And on that note, I, as a gesture of, small gesture from MIT SD's end, I would like to present a small certificate for you. Wow, that's wonderful. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Rachit. Thank We you. are very grateful It that we really were means a able lot. to. Yes, absolutely. We are very grateful that we were able to be a part of this session, and we hope that you encourage your classmates just like that. I have shared Rachit's profile, LinkedIn profile in the chat box. Connect with him, Okay, network right. as much as possible, and come back and share your thoughts with us in the next session as well, just like this one. I hope I can attend my next classmates synergy sphere. Next time I come, Definitely. this should be my classmates over there. Definitely. That is what Synergisphere is Thank all you. about, Thank you so right? much, everyone. So please stay connected Thank you with so much, everyone. Synergisphere. I'm really grateful to be here. Definitely. Where we continue to bring inspiring professionals, your classmates, and for meaningful conversation that helps us learn, reflect, and grow together. Have a wonderful day ahead, everyone, and thank you so much for being a part of this Synergisphere session. Thank you so much, Rachit, once again. We will be looking Thank you. forward to having more sessions with you for sure. Anytime. Thank you. Bye bye. Have a Thank nice you. day, I'll see everyone. you all. Thank you. Bye. Bye. Yeah.